اسلامک شورٹ اسٹیٹس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں۔ بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ طائف میں رات تو آئی تھی، لیکن وہاں کی سرگرمیاں اور بھاگ دوڑ دیکھ کر دن کا گمان ہوتا۔ باہر سے خبریں آ رہی تھیں کہ مسلمان طائف کی طرف بڑی تیزی سے بڑھے آ رہے ہیں۔ لوگ دفاعی تیاریوں میں مصروف تھے۔ سب سے بڑا مسئلہ خوراک اور پانی کا تھا۔ بہت سے لوگ پانی جمع کرنے کے لیے حوض بنا رہے تھے۔ مالک بن عوف ان سرگرمیوں کے شور و غل میں سے گزرتا چلا جا رہا تھا۔ لوگ اتنے مصروف تھے کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلا کہ ان کے درمیان سے ان کا سالار اعلیٰ گزر گیا ہے۔ عبادت گاہ میں وہ کاہن جس نے کہا تھا کہ ثقیف اور حوازن مسلمانوں کو مکے میں بے خبری میں جالیں گے، گہری نیند سویا ہوا تھا۔ اسے جگانے کی کوئی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ عبادت گاہ کے کسی اندرونی حصے میں سویا ہوا تھا۔ عبادت گاہ کے مجاور بیرونی کمرے میں سوئے ہوئے تھے۔ انہیں کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ یہ ان کے فرائض میں شامل تھا کہ کاہن کے کمرے تک کسی کو نہ پہنچنے دیں۔ دو تین مجاور اٹھ کر باہر آ گئے۔ ایک کے ہاتھ میں مشل تھی۔ ایک مجاور نے مالک کے راستے میں آ کر کہا، مالک بن عوف، کیا قبیلے کا سردار نہیں جانتا کہ اس سے آگے کوئی نہیں جا سکتا؟ ہم سے بات کر مالک بن عوف۔ مالک بن عوف نے تلوار کے دستے پر ہاتھ رکھ کر کہا، اور کیا تم نہیں جانتے کہ ایک سردار کا راستہ روکنے کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے؟ میں کاہن کے پاس جا رہا ہوں۔ ایک اور مجاور نے کہا، کاہن کے قہر کو سمجھ مالک۔ کاہن جو اس وقت تمہیں سویا ہوا نظر آئے گا وہ لات کے حضور گیا ہوا ہے۔ مالک بن عوف ایسی ذہنی کیفیت میں تھا جس نے اس کے دل سے کاہن کا تقدس اور خوف نکال دیا تھا۔ ایک تو وہ بہت بری شکست کھا کر آیا تھا، دوسرے اس کی اس بیوی نے اسے دھتکار دیا تھا جسے وہ دل و جان سے چاہتا تھا۔ اس نے مجاور کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے مشل کے ڈنڈے پر ہاتھ مارا اور اس کے ہاتھ سے مشل چھین کر کاہن کے کمرے کی طرف چلا گیا۔ مجاور اس کے پیچھے دوڑا، لیکن وہ کاہن کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ کاہن مجاوروں کے شور سے جاگ اٹھا، اپنے کمرے میں مشل کی روشنی دیکھ کر اٹھ بیٹھا۔ مالک بن عوف نے مشل دیوار میں اس جگہ لگا دی جو اسی مقصد کے لیے دیوار میں بنائی گئی تھی۔ مالک بن عوف نے کہا، مقدس کاہن، میں پوچھنے آیا ہوں کہ… کاہن نے اس کی بات پوری کرتے ہوئے کہا، یہی کہ تمہاری شکست کا سبب کیا ہوا؟ کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ ایک حام کی قربانی دو؟ مالک بن عوف نے کہا، تم نے یہ بھی کہا تھا کہ حام نہ ملے تو اپنے قبیلے سے کہو کہ اپنے خون کی اور اپنی جانوں کی قربانی دے۔ تم نے کہا تھا کہ حام کی تلاش میں وقت ضائع نہ کرنا۔ تم نے کہا تھا کہ مسلمان لڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ کاہن نے پوچھا، کیا تو اپنے دیوتا سے باز پرس کرنے آیا ہے کہ دشمن نے تمہیں شکست کیوں دی؟ میں نے کہا تھا پیٹھ نہ دکھانا۔ کیا تیرے لشکر نے پیٹھ نہیں دکھائی؟ تیرے لشکر میں تو اتنی سی بھی غیرت نہ تھی کہ اپنی عورتوں اور بچوں کی حفاظت کرتا۔ مالک بن عوف نے پوچھا، میں پوچھتا ہوں کہ تم نے کیا کیا؟ اگر سب کچھ ہمیں ہی کرنا تھا تو تم نے کیا کمال دکھایا؟ تم نے کیوں کہا کہ مسلمانوں کو اس وقت پتہ چلے گا جب تمہاری تلواریں انہیں کاٹ رہی ہوں گی؟ کیا تم نے ہمیں دھوکہ نہیں دیا؟ کیا یہ درست نہیں کہ محمد سچا ہے صلی اللہ علیہ وسلم جس نے تمہاری فال کو جھٹلا دیا؟ اگر تم کاہن نہ ہوتے تو میں تمہیں قتل کر دیتا۔ اب طائف پر بہت بڑا خطرہ آ رہا ہے۔ کیا تم اپنے دیوتا کی بستی کو بچا سکتے ہو؟ کیا تم مسلمانوں پر قہر نازل کر سکتے ہو؟ کاہن نے کہا، پہلی بات یہ سن لے عوف کے بیٹے، کاہن کو دنیا کی کوئی طاقت قتل نہیں کر سکتی۔ کاہن کی جب عمر ختم ہوتی ہے تو وہ دیوتا لات کے وجود میں تحلیل ہو جاتا ہے۔ تو مجھ پر تلوار اٹھا کر دیکھ لے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مسلمان طائف تک پہنچ سکتے ہیں، یہاں سے زندہ واپس نہیں جا سکتے۔ جس وقت مالک بن عوف کاہن کے کمرے میں داخل ہوا تھا اس وقت کسی انسان کی شکل کا ایک سایہ عبادت گاہ کی عقبی دیوار پر رینگ رہا تھا۔ جو کوئی بھی تھا وہ اپنی جان کا خطرہ مول لے رہا تھا۔ مالک بن عوف ہی تھا جو سرداری کے روب میں رات کے وقت کاہن کے کمرے تک پہنچ گیا تھا۔ یہ عبادت گاہ صدیوں پرانی تھی۔ عقبی دیوار میں چھوٹا سا شگاف تھا۔ وہ انسان جس کا سایہ دیوار پر رینگ رہا تھا اس شگاف میں داخل ہو گیا۔ آگے اونچی گھاس اور جھاڑیاں تھی۔ وہ انسان گھاس اور جھاڑیوں میں سے یوں گزرنے لگا کہ اس کے قدموں کی آہٹ یا ہلکی سی سرسراہٹ بھی سنائی نہیں دیتی تھی۔ وہ گھاس اور جھاڑیوں میں سے گزر کر اس چبوترے پر جا چڑھا جس پر عبادت گاہ کی عمارت کھڑی تھی۔ اس طرف کے دروازے کے کواڑ دیمک خوردہ تھے۔ وہ انسان کھائے ہوئے ان کواڑوں میں سے گزر کر عبادت گاہ میں داخل ہو گیا۔ آگے تاریک غلام گردش تھی۔ اس انسان نے جوتے اتار دیے اور دبے پاؤں آگے بڑھتا گیا۔ اس گھپ اندھیرے میں وہ یوں چلا جا رہا تھا جیسے پہلے بھی یہاں آیا ہو۔ وہ غلام گردش کی بھول بھلائیوں میں سے گزرتا کاہن کے کمرے کے نزدیک پہنچ گیا۔ اسے کاہن کی اور کسی اور کی باتیں سنائی دی۔ وہ مالک بن عوف تھا جو کاہن کے ساتھ باتیں کر رہا تھا۔ یہ انسان رک گیا۔ اسے کاہن کے کمرے سے آتی ہوئی مشل کی روشنی نظر آ رہی تھی۔ مالک بن عوف کاہن سے اتنا مروب ہوا کہ وہ سر جھکائے ہوئے وہاں سے نکل گیا۔ یہ انسان جو قریب ہی کہیں چھپ گیا تھا آگے بڑھا۔ کاہن دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے کھل گئی۔
क्योंकि उसके सामने एक जवां साल लड़की खड़ी थी। उस लड़की को वो पहचानता था। ये वही यहूदी लड़की थी जिसे एक ज़ईफुल उम्र यहूदी काहिन के पास तोहफे के तौर पर लाया था, और उस लड़की के साथ उसने सोने के 2 टुकड़े काहिन की नजर किए थे। ये काहिन का इनाम या मुआवजा था। काहिन ने उसे यकीन दिलाया था कि सकीफ और हवाज़िन के कबीले मुसलमानों को मक्का में हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। उसने उस बूढ़े यहूदी से कहा था, देवता लात का इशारा कभी गलत नहीं हो सकता। बूढ़ा यहूदी उस यहूदी लड़की को काहिन के पास एक रात के लिए छोड़कर चला गया था। ताइफ में वो इस खुशखबरी का मुंतजिर बैठा था कि सकीफ, हवाज़िन और उनके दोस्त कबीलों ने इस्लाम को मुसलमानों के खून में डुबो दिया है। लेकिन हुआ ये कि मालिक बिन औफ सर झुकाए हुए ताइफ में दाखिल हुआ। फिर उसके लश्करी कदम घसीटते हुए 2-2, 4-4 की टोलियों में ताइफ में आने लगे। बूढ़े यहूदी की कमर उम्र से पहले ही दोहरी हो गई थी। मालिक बिन औफ को शिकस्त खुर्दगी की हालत में वापस आते देखकर उसकी कमर जैसे टूट ही गई। उसकी कमर पर आखिरी तिनका उस यहूदी लड़की ने रख दिया जिसे वो इनाम के तौर पर काहिन के हवाले कराया था। लड़की ने उसे कहा था, मैं हैरान हूँ कि तुम जैसे जहां दीदा बुजुर्ग ने धोखा खाया। मुझे उस मकरूह काहिन के किसी एक लफ्ज पर भी यकीन नहीं आ रहा था। मैंने तेरे हुक्म पर अपनी इस्मत कुर्बान कर दी। बूढ़े यहूदी ने कहा, मेरे हुक्म से नहीं, खुदाए यहूदा के हुक्म से तुम्हारी इस्मत की कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। यहूदियों में ये रिवाज आम था जो अभी तक चला रहा है कि मैदान जंग में आने से गुरेज करते थे। वो ऐसी चाल चलते थे कि अपने दुश्मनों को आपस में लड़ा दिया करते। इसके लिए वो दौलत के साथ साथ अपनी बेटियों की इस्मत भी एक कामयाब हरबे के तौर पर इस्तेमाल करते। यहूदियों के माशरे और मजहब में इस्मत और आबरू की कोई कदर कीमत नहीं। लेकिन ये लड़की अपनी कौम से बहुत ही मुख्तलिफ साबित हुई। वो बूढ़े यहूदी पर टूट टूट पड़ती और कहती कि मुसलमानों का कला कमा हो जाता तो वो फख्र से कहती कि उसने इस मकसद के लिए अपनी इस्मत कुर्बान कर दी, और वो ये भी कहती कि काहिन ने उन्हें धोखा दिया है। रात को जब बूढ़ा यहूदी गहरी नींद सोया हुआ था, वो लड़की उठी। उसने खंजर अपने तकिए के नीचे रखा हुआ था। उसने खंजर निकाला और अपने कपड़ों के अंदर छुपा लिया। वो दबे पांव बाहर निकल गई। काहिन उस लड़की से कह रहा था, हम जानते थे कि हमारा जादू तुम्हें एक बार फिर हमारे पास ले आएगा। आओ, दरवाजे पर खड़ी क्या कर रही हो? लड़की आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ी और काहिन के करीब जा रुकी। उसने धीमी आवाज में कहा, जादू नहीं, इंतकाम कहो। उसकी आवाज में कहर और गजब छुपा हुआ था। वो बोली, मुझे इंतकाम का जादू यहाँ तक ले आया है। काहिन ने हैरत ज़दा मुस्कुराहट से कहा, क्या कह रही हो लड़की? तुम मालिक बिन औफ से इंतकाम लेना चाहती हो? वो जा चुका है, वो मुझे कत्ल करने आया था। क्या कोई इंसान इतनी जुर्रत कर सकता है कि लात के काहिन को कत्ल कर दे? लड़की ने कहा, हाँ, एक इंसान है जो लात के काहिन को कत्ल कर सकता है। वो लात का पुजारी नहीं, वो मैं हूँ, खुदाए यहूदा की पुजारन। लड़की ने पलक झपकते कपड़ों के अंदर से खंजर निकाला और काहिन के दिल में उतार दिया। उसके साथ ही लड़की ने काहिन के मुंह पर हाथ रख दिया कि उसकी आवाज ऊंची न निकले। लड़की ने खंजर निकाला और काहिन की शहरक काट दी। वो बड़े इत्मीनान से काहिन के कमरे से निकल आई और उस रास्ते जिस रास्ते से वो आई थी इबादत गाह के अहाते से निकल गई। मालिक बिन औफ अपनी ख्वाबगाह में सर झुकाए बैठा हुआ था। उसकी चहेती बीवी उसके पास थी। गुलाम ने इत्तला दी कि एक अजनबी औरत आई है जिसके कपड़े खून से लाल हैं और उसके हाथ में खून आलूद खंजर। मालिक बिन औफ जो नीम मुर्दा नजर आ रहा था उछल पड़ा और बोला कि उसे अंदर ले आओ। उसकी और उसकी बीवी की नजरें दरवाजे पर जम गईं। वो जवान औरत दरवाजे में आन खड़ी हुई और बोली, जो काम तुम नहीं कर सके थे वो मैं कराई हूँ। मैंने काहिन को कत्ल कर दिया है। मालिक बिन औफ पर सन्नाटा तारी हो गया। उसके चेहरे पर खौफ की परछाइयां नजर आने लगी। उसने लपक कर तलवार उठाई और न्याम परे फेंक कर लड़की की तरफ बढ़ा। उसकी बीवी रास्ते में आ गई। बीवी ने उसे कहा, इस लड़की ने जो कुछ किया है ठीक किया है। तुम्हें झूठे सहारे और झूठे इशारे देने वाला मर गया है, अच्छा हुआ है। मालिक बिन औफ ने कहा, तुम नहीं जानती हम पर क्या कहर नाजिल होने वाला है। यहूदी लड़की ने कहा, तुम पर कोई कहर नाजिल नहीं होगा। क्या काहिन ने तुम्हें नहीं कहा था कि काहिन को कोई कत्ल नहीं कर सकता? और काहिन की जब उम्र पूरी हो जाती है तो वो देवता लात के वजूद में तहलील हो जाता है। अगर तुम्हें जुर्रत है तो लात के मुजाविरों से कहो कि अपने काहिन की लाश लात के वजूद में तहलील कर दें। उसकी लाश को बाहर रख दो, फिर देखो गिद्ध और कुत्ते किस तरह उसे खाते हैं। मालिक बिन औफ की बीवी ने मालिक के हाथ से तलवार ले ली और पलंग पर फेंक दी। बीवी ने उसे कहा, होश में आ औफ के बेटे, अपनी किस्मत उस शख्स के हाथ में न दे जो एक लड़की के खंजर से कत्ल हो गया है। उसने गुलाम को बुलाया और उसे कहा,
ये लड़की हमारी मेहमान है, इसके गुस्ल और आराम का इंतजाम करो। मालिक बिन औफ के चेहरे से खौफ का तासुर धुलने लगा। बीवी ने उसके ख्यालों में इनकलाब बर्पा कर दिया। सुबह तुलू हो रही थी जब शिकस्त और गम के मारे हुए मालिक बिन औफ को 2 इत्तलाएं मिली। एक ये कि रात को काहिन कत्ल हो गया है और मुजावर कह रहे हैं कि रात मालिक बिन औफ के सिवा काहिन के कमरे में और कोई नहीं गया और न रात के वक्त किसी को वहाँ जाने की जुर्रत हो सकती है। मुजावरों ने ये मशहूर कर दिया था कि काहिन को मालिक बिन औफ ने खुद कत्ल किया है या कत्ल करवाया है। मालिक बिन औफ को दूसरी खबर ये मिली कि मुसलमान जो ताइफ की तरफ बढ़े चले आ रहे थे मालूम नहीं किधर चले गए हैं। ये खबर ऐसी थी जिसने मालिक बिन औफ के हौसले में कुछ जान पैदा कर दी। उसने तेज रफ्तार घोड़ों पर 2-3 कासिद उस रास्ते की तरफ दौड़ा दिए जो हुनैन से ताइफ की तरफ आता था। उसके बाद वो इबादत गाह की तरफ चला गया। उसने लोगों को बड़ी मुश्किल से यकीन दिलाया कि वो मुकद्दस काहिन को कत्ल करने की जुर्रत नहीं कर सकते। लोग पूछते थे कि फिर कातिल कौन है। मालिक बिन औफ ने कहा कि वो कातिल का सुराग जल्द ही लगा लेगा। वो यहूदी लड़की को सामने नहीं लाना चाहता था। उसने लोगों की तवज्जो उधर से हटाकर मुसलमानों की तरफ कर दी जो ताइफ को मुहासरे में लेने के लिए बढ़े आ रहे थे। वो इबादत गाह के अंदर चला गया। उसने मुजावरों के साथ किसी तरह मामला तय कर लिया। एक बूढ़े मुजावर ने बाहर आकर लोगों के हिरासा हुजूम से कहा, लात के पुजारियों, हमारे मुकद्दस काहिन को किसी ने कत्ल नहीं किया। वो देवता लात के वजूद में घुल मिल गया है। देवता लात के हुक्म से अब मैं काहिन हूँ। जाओ अपनी बस्ती को उस दुश्मन से बचाओ जो बढ़ा आ रहा है। मालिक बिन औफ जब अपने घर पहुंचा तो कुछ देर बाद उसके भेजे हुए कासिद वापस आ गए। उन्होंने उसे बताया कि उस रास्ते पर जो ताइफ की तरफ आता है उसमें मुसलमानों का नामो निशान भी नहीं है। मालिक बिन औफ ने अपने आप को धोखे में न रखा और उसने अपने कबीले के सरदारों से कहा, मोहम्मद अपने दुश्मन को बख्शने वाला नहीं, वो किसी न किसी तरफ से जवाबी हमला जरूर करेगा। उसने ऐलान किया कि शहर के दिफाई इंतजामात में कोई कमी न रहने दी जाए। कासिदों ने मालिक बिन औफ को बिल्कुल सही इत्तला दी थी कि ताइफ के रास्ते पर मुसलमानों का नामो निशान नजर नहीं आता, लेकिन मुसलमान सैलाब की तरह ताइफ की तरफ बढ़े चले आ रहे थे। उन्होंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से रास्ता बदल लिया था। बदला हुआ रास्ता बहुत लंबा था, लेकिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना लंबा रास्ता इख्तियार करने का फैसला इसलिए किया था कि छोटा रास्ता पहाड़ियों और चट्टानों में से गुजरता था। खड्ड नाले भी थे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सालारों से कहा था कि हुनैन के पहले तजुर्बे को न भूलो। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ताइफ तक का तमाम इलाका घात के लिए मौजूद है। मालिक बिन औफ ऐसी ही घात लगा सकता है जैसी घात में उसने खालिद बिन वलीद को तीरों से छलनी कर दिया था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो रास्ता ताइफ तक पहुंचने के लिए इख्तियार किया था वो वादिउल मलीह से गुजरता था और वादिउल करन में दाखिल होता था। आप अलैहिस्सलाम अपने लश्कर को वादिउल करन में से गुजारने की बजाय ताइफ के शुमाल मगरिब में 7 मील दूर निकल गए और नखिब और सावेरा के इलाके में दाखिल हो। ये इलाका नशिब फराज का था। उसमें पहाड़ियाँ और चट्टानें न होने के बराबर थी। मुजाहिदीन का ये लश्कर 5 फरवरी 630 ईस्वी 15 शवाल 8 हिजरी के रोज ताइफ के गिरदो निवाह में उस समत से पहुंचा जो ताइफ वालों के वहमो गुमान में भी नहीं था। मुजाहिदीन इस्लाम का कूच बड़ा ही तेज था। हिरावल में बनु सलीम थे जिनके कमांडार खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु थे। तवक्कुआत के मुताबिक ताइफ तक दुश्मन कहीं भी नजर न आया। मौरखीन ने लिखा है इसकी वजह ये थी कि मालिक बिन औफ अब खुले मैदान में लड़ने का खतरा मोल नहीं ले सकता था। हुनैन के मार्के में ज्यादातर नुकसान बनु हवाजिन का हुआ था। कबीला सकीफ लड़ा था, लेकिन जो टक्कर बनु हवाजिन ने ली थी वो बनु सकीफ को लेने का मौका न मिला था। फिर भी सकीफ पसपा हुआ आए थे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस खतरे से बेखबर नहीं थे कि अहले सकीफ ताज़दम है और वो अपने शहर के दिफा में लंबे अरसे तक लड़ेंगे। मालूम नहीं ये किसकी गलती थी कि मुसलमान शहर की दीवार के खतरनाक हद तक करीब जा रुके। वो वहाँ पड़ाव करना चाहते थे। अचानक अहले सकीफ दीवारों पर नमूदार हुए और उन्होंने मुसलमानों पर तीरों का मेह बरसा दिया। बहुत से मुसलमान जख्मी और बहुत से शहीद हो गए। मुसलमान पीछे हटाए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को मुहासरे का कमांडर मुकर्रर किया। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने बड़ी तेजी से शहर का मुहासरा मुकम्मल किया। उन्होंने उन रास्तों पर ज्यादा नफरी के दस्ते रखे जिन रास्तों से दुश्मन का फरार मुमकिन था। कबीला सकीफ पूरी तरह तैयार था। मुसलमान तीरंदाजी के सिवा और कोई कार्रवाई नहीं कर सकते थे। मुजाहिदीन ने यहाँ तक बेखौफी के मुजाहिरे किए कि शहर की दीवार के करीब जाकर अहले सकीफ के उन तीरंदाजों पर तीर फेंके जो दीवारों पर थे। चूँकि वो दीवारों पर थे और उन्हें ओट भी मयसर थी, इसलिए उनके तीर मुसलमानों का ज्यादा नुकसान
मांग करते थे। मुसलमान तीरंदाजों के जैश आगे बढ़ते और पीछे हटाते। मुसलमानों के जख्मियों में बड़ी तेजी से इजाफा हो रहा था। महासरे के कमांडर अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के अपने बेटे अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु बनु सकीफ के तीरों से शहीद हो गए। 5 दिन इसी तरह गुजर गए। तारीख इस्लाम की मशहूर मारूफ शख्सियत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु लश्कर के साथ थे। जंग खंदक में मदीने के दिफा के लिए जो खंदक खोदी गई थी वो सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु की जंगी दानिश का कमाल था। उससे पहले अरब खंदक के तरीका दिफा से नावाकिफ थे। अब सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु ने देखा कि महासरा कामयाब नहीं हो रहा तो उन्होंने शहर पर पत्थर फेंकने के लिए एक मंजनीक तैयार करवाई, लेकिन वो भी कामयाब न हो सकी। सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक दबाबा तैयार करवाई। ये लकड़ी या चमड़े की बहुत बड़ी ढाल होती थी जिसे चंद आदमी पकड़कर आगे आगे चलते थे। खुद उसकी ओट में रहते और उसकी ओट में बहुत से आदमी किले के अंदर चले जाते। सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु ने जो दबाबा तैयार करवाई वो गाय की खाल की बनी हुई थी। एक जैश उस दबाबा की ओट में शहर के बड़े दरवाजे तक पहुंचा। ऊपर से आने वाले तीरों की तमाम बौछारें दबाबा में लगती रहीं, लेकिन दबाबा जब अपनी ओट में जैश को लेकर दरवाजे के करीब पहुंची तो दुश्मन ने ऊपर से दहकते हुए अंगारे और लोहे के सुर्ख टुकड़े दबाबा पर इतने फेंके कि खाल की दबाबा तीर रोकने के काबिल न रही, क्योंकि वो कई जगह से जल गई थी। दबाबा चूंकि अरबों के लिए एक नई चीज थी जो पहले ही इस्तेमाल में बेकार हो गई थी, इसलिए वो उसे वहीं फेंक कर पीछे दौड़े। अहले सकीफ ने उनके ऊपर तीर बरसाए जिससे कई एक मुजाहिदीन जख्मी हो गए। 10 दिन और गुजर गए। महासरे और दिफा की सूरत यही रही कि मुसलमान तीर बरसाते हुए आगे बढ़ते थे और तीर खाकर पीछे हटाते। बनु सकीफ पर उसका असर ये हुआ कि उन पर मुसलमानों की बेजिगरी और बेखौफी की दहशत तारी हो गई। यही वजह थी कि उन्होंने किसी तरफ से बाहर आकर मुसलमानों पर हमला करने की कोशिश न की। आखिर एक रोज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सालारों को इकट्ठा किया और बताया कि महासरे की कामयाबी की कोई सूरत नजर नहीं आती। बाप अलैहिस्सलाम ने सालारों से मशवरा तलब किया कि क्या किया जाए। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु और हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि महासरा उठा लिया जाए और मक्का को कूच का हुक्म दिया जाए। आप अलैहिस्सलाम महासरा उठाने के हक में थे, जिसकी वजह ये थी कि मक्का के इंतजामात आप अलैहिस्सलाम की तवज्जो के मोहताज थे। मक्का चंद ही दिन पहले फतह किया गया था। खतरा था कि ताइफ का महासरा तूल पकड़ गया तो मक्का में दुश्मन को सर उठाने का मौका मिल जाएगा। 23 फरवरी 630 ईस्वी 4 ज़िक़ाद 8 हिजरी के रोज महासरा उठा लिया गया। महासरा उठाने का असर अहले सकीफ पर कुछ और होना चाहिए था, लेकिन उन पर इस किस्म का खौफ तारी हो गया कि मुसलमान जो अब जा रहे हैं मालूम नहीं कि किस वक्त लौट आएं और शहर पर यलगार कर दें और शहर की ईंट से ईंट बजा दें। खुद मालिक बिन औफ की सोच में इनकलाब आ चुका था। काहिन की झूठी पेशनगोई और मार्काए हुनैन में मुसलमानों की ज़रबकारी ने उसे अपने अकीदों पर नजर सानी के लिए मजबूर कर दिया। मुसलमान 26 फरवरी के रोज चौराना के मकाम पर पहुंचे जहां रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माल गनीमत इकट्ठा करने का हुक्म दिया था। उस माल गनीमत में 6000 औरतें और बच्चे थे और हजारहा ऊंट और भेड़ बकरियां थी। फौजी साजो सामान का अंबार था। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुश्मन की औरतों, बच्चों और जानवरों को अपने लश्कर में तकसीम कर दिया। मुजाहिदीन का लश्कर जोराना से अभी चला न था कि कबीला हवाज़िन के चंद एक सरदार रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर पहुंचे और ये ऐलान किया कि हवाज़िन के तमाम तर कबीले ने इस्लाम कबूल कर लिया है। उसके साथ ही उन सरदारों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की कि उनका माल गनीमत उन्हें वापस कर दिया जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि उन्हें माल गनीमत में से कौन सी चीज सबसे ज्यादा अजीज है, अहल अयाल या अमवाल। सरदारों ने कहा कि उनकी औरतें और बच्चे उन्हें वापस कर दिए जाएं और बाकी माल गनीमत मुसलमान अपने पास रख लें। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुजाहिदीन के लश्कर से कहा कि बनु हवाज़िन को उनकी औरतें और बच्चे वापस कर दिए जाएं। तमाम लश्कर ने औरतें और बच्चे वापस कर दिए। बनु हवाज़िन को तवक्को नहीं थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर फयाजी का मुजाहिरा करेंगे या मुजाहिदीन का लश्कर अपने हिस्से में आया हुआ माल गनीमत वापस कर देंगे। मुसलमानों की इस फयाजी का असर ये हुआ कि कबीला हवाज़िन ने इस्लाम को दिलो जान से कबूल कर लिया। हवाज़िन के सरदार अपने अहलो अयाल को अपने साथ लेकर चले गए। मुसलमानों की फयाजी के असरात ताइफ तक पहुंच गए। मुसलमान अभी जोराना में ही थे कि एक रोज मालिक बिन औफ मुसलमानों की खैमागाह में आया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर पहुंचकर इस्लाम कबूल कर लिया। देवता लात की खुदाई हमेशा के लिए खत्म हो गई।